Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer physics, PCCP रेजोनेंस कोटा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी का 5th लेक्चर है ये। तो टॉपिक्स हैं आज के ओम्स लॉ, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस and derivation of Ohm's law Okay, start करें. First of all, the Ohm's law. When physical conditions of a conductor, physical conditions means dimensions and temperature of a conductor remains constant. When physical conditions of a conductor, conditions means dimensions, material, length, width, area, cross section and temperature remains constant, then current in the conductor will be directly proportional to the potential difference, will be directly proportional to potential difference across conductor. ये तो कंफर्म है. इफ बी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V, करंट इज I, तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन. ये शो कर रहा है V इज प्रोपोर्शनल टू I. अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहा है तो V इज वन कांस्टेंट R एंड I. इट इज ओम्स लॉ. It's the mathematical form of Ohm's law. Here R is constant known as resistance of wire. सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं क्या है. What is R? V upon I. Again, it is the mathematical form of Ohm's law. It is the statement of Ohm's law. V upon I. What is the unit? We can say that is volt divided by ampere, also known as ohm, or it is the symbol of resistance. Ohm, it is the unit of SI unit of resistance. So now we have to define definition of 1 ohm. कैसे define करेंगे हम? If V is equals to 1 volt, I is equals to 1 ampere, because we have to define 1 ohm, then R will be equals to 1 upon 1, that is 1 ohm. If the current flowing through a conductor is 1 ampere due to the potential difference of 1 volt, then the resistance of that conductor will be 1 ohm. If current flowing through a conductor is 1 ampere ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही फ्लो होता है, ड्यू टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर will be 1 ohm. Is it clear? Now, if you know the slope of the graph, we can easily find from here. What is the slope of graph? चलिए देखते हैं अभी. It is now one question on it. R equals to V upon I. Question 1. If potential difference
across a conductor is 1 volt and current through the conductor is 1 ampere and current through conductor is 1 ampere. Find its resistance. It is very simple. R is equal to V upon I. We can find if current is doubled, then what will be the new resistance of that conductor. अब देखिए सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट इज सिंपल. V is 1 volt, I is 1 ampere, then R will be equals to V upon I, that is 1 upon 1, that is how much? 1 ohm. Is it clear? Now the second part is important. If current is doubled, I is doubled, then what is the new current? I dash will be 2 times I, that is 2 into 1, that is 2 ampere. Now think about it. Do you know? Because V is proportional to I, if current becomes double, then potential difference must be doubled. Double हो जाएगा ये. तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? V dash that equals to double 2 into 1, that is 2 volt. Now again, what is R dash? New resistance. V dash upon I dash, that is 2 by 2, again 1 ohm. It will not change. It means resistance of the conductor does not depend only on V or only on I. It is the ratio of V and I. It means resistance of conductor does not depend only on I or only on V. It is the ratio of V and I. Is it clear? मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए. Okay, it was the question on based Ohm's law. Now the experimental verification of Ohm's law. चलिए एक्सपेरिमेंटल verification of Ohm's law. For this circuit will be, क्या सर्किट होगा ये देखिए. सबसे पहले ए बैटरी प्लस माइनस, it is key. Okay, to find the current, here will be ammeter, it is rheostat to change the current, it is rheostat R H. Here is any resistance, a wire resistance wire. We have to find the current, it will be positive and negative. Now to find the potential difference, we must be parallel to resistance. Is it clear? The use of rheostat is to change the current in the circuit. अगर हम ऐसे बनाना चाहें तो बैटरी कुछ इस टाइप की होती है, ऐसे भी बना सकते हैं हम. इट इज एनोड, इट इज कैथोड, इट इज इलेक्ट्रोलाइट, इट इज सेल. ये एनोड प्लस, इट इज कैथोड, दैट इज माइनस. ओके, यहाँ से कनेक्ट किया मैंने. हियर इज की, हियर इज एमीटर, ए एमीटर, दैट इज प्लस एंड माइनस. अब यहाँ कनेक्ट करूंगा ये रेजिस्टेंस, और हियर इज रियोस्टेट. रियोस्टेट कुछ इस टाइप से ही होता है. सेम थिंग, अगर ऐसे सर्किट बनाऊं या ऐसे बनाऊं, सेम थिंग. अगर इसको आगे पीछे
मूव कराऊंगा तो रेजिस्टेंस इन द सर्किट विल चेंज। इट द वोल्ट मीटर कुछ टाइप का ही होता है, इस टाइप से, दैट इज ये पॉइंटर, दैट इज वी, हियर इज पॉइंटर, तो हियर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनेक्टेड अक्रॉस in parallel to V. Okay, we can easily find, switch on the circuit, current will flow, current flow होगा, यहाँ भी current flow होगा, ऐसे बनाई सर्किट या ऐसे बनाई, सेम थिंग, करंट, we can easily find the current and the potential difference। तो यहाँ लेता हूँ मैं सीरियल नंबर, ये रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन वोल्ट्स, that is V, reading of ammeter, that is A, in ampere, or here is R. We know R is V upon I. We can easily find. First of all, switch on the circuit, current will flow. We can easily find the current with the help of ammeter and potential difference by voltmeter. तो यहाँ नोट कर सकते हैं हम रीडिंग। सपोज हियर इज करंट, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 2 वोल्ट 1 एम्पियर। तो व्हाट द आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, दैट इज 2 ओम, इजीली फाइंड। नाउ चेंज द करंट इन द सर्किट विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस को चेंज कर दूं मैं, इसको इधर करूं या इधर करूं, वी कैन इजीली फाइंड द करंट को चेंज करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस विल आल्सो चेंज, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो देयर विल बी 2, 3, 4 रीडिंग्स ले सकते हैं हम। नाउ टेक हियर एवरेज ऑफ रेजिस्टेंस आर, यहाँ रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। वन मोर थिंग, दिस द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, एटलीस्ट हाउ मच रीडिंग्स, 4 or 5 रीडिंग्स। इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, इट मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन। प्लॉट एक्सपेरिमेंटली प्लॉट करते समय एम्पियर करंट, here is potential difference, मुझे मालूम है अप्रोप्रिएट, मतलब स्केल लूंगा और पॉइंट लगाऊंगा मैं यहाँ पर। ओके, प्लॉट द ग्राफ, कनेक्ट देम, 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, हियर इज 4 or 5 रीडिंग्स। ओके, इट मस्ट पास थ्रू दिस वन। ये शो कर रहा है व्हाट इज V इज प्रोपोर्शनल टू I, ग्राफ मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन, और आर मैं यहाँ से फाइंड कर ही सकता हूँ। ये हो सकता है थोड़ा थोड़ा ड्यू टू द एरर इन रीडिंग्स, ये थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, तो वी कैन प्रूव ओम्स लॉ। ओके, नाउ क्वेश्चन, one question, this graph is given, that is current and potential difference, it is straight line. What is the slope of this graph is known as, बोलिए, is known as, अगर कोई सा भी पॉइंट लूँ यहाँ से, this one, it will be delta I, here will be delta V, change। अगर ऐसा नहीं करूँ तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट भी ले सकता हूँ, वी कैन फाइंड इजीली। तो व्हाट इज स्लोप, दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन I, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, सेम थिंग, या V upon I, simply, that is known as, what is V upon I? R, resistance, means slope of IV graph. I means I on x-axis is known as resistance. अब थिंक अबाउट दिस, कभी कभी ऐसा होता है, ये ग्राफ मैंने ऐसे दे दिया, हियर इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V, हियर इज करंट I, अगेन इट विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो स्लोप दैट इज थीटा, तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ, VI मैंने इसलिए लिखा है, V इज ऑन एक्स एक्सिस,
तो ग्राफ दैट इज tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू दैट इज I upon V. I upon V is 1 upon R. तो slope of VI graph is known as 1 upon R or रेजिस्टेंस के बजाय 1 upon R कंडक्टेंस. Conductance, its unit will be 1 upon ohm or 1 upon ohm or mho. सेम थिंग. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देख लीजिए आपके एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है. ये तो चेंज हो सकते हैं आई बी और वी आई. ग्राफ गिवन होगा और आपको देखना होगा कि हमें स्लोप निकालना है तो वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस. तो V अपॉन आई आ रहा है या I अपॉन V आ रहा है, उस हिसाब से बोलिए. अगर I एक्स एक्सिस पर है, V पोटेंशियल Y एक्सिस पर है तो स्लोप विल बी रेजिस्टेंस. अगर V एक्स एक्सिस पर है, I Y एक्सिस पर है तो स्लोप विल बी 1 अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज नोन एज कंडक्टेंस. और इस यूनिट इज 1 अपॉन ओम. वी कैन से दैट इज mho. सेम थिंग 1 अपॉन ओम, 1 अपॉन ओम या दिस वन mho. तो दिस वाज द क्वेश्चन. Now the dependence of resistance. Dependence, the most important question of resistance. ये हम दो मेथड से करेंगे. आप इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे होता क्या है रेजिस्टेंस. देखिए डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. नंबर फर्स्ट क्वांटिटी लेंथ ऑफ द कंडक्टर. If we increase the length of the conductor, लेंथ मेरा कंडक्टर इतना बड़ा था, ओके. अगर लेंथ को इंक्रीज कर दूं, डबल कर दूं, तो जो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं उसमें हिंड्रेंस जो पड़ रही है तो यहाँ ज़्यादा होगी, कन्फर्म. तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, इफ वी इंक्रीज द लेंथ देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज. ऑन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ कंडक्टर, its length, its resistance will increase. If we plot the graph between L length and R, it will be a straight line. It means R is proportional to. अगर लेंथ को डबल करूंगा रेजिस्टेंस बिकम्स डबल. तो R is proportional to L. नंबर 1. नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट्स A. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ऐसे वायर दिया हुआ है, इट विल बी ये वाला ये होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ऐसा भी हो सकता है वायर ऐसा है मेरा. चलिए करंट यहां से एंटर कर रही है, इधर निकल रही है, तो इट विल बी द दिस वन और दिस वन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो जितना ज़्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा. फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे इस रूम में बैठे हुए हैं, एक गेट है, जैसे ही बेल बजती है बाहर जाना है तो इस गेट से ही बाहर जाएंगे, टकराएंगे, हिंड्रेंस ज़्यादा पड़ेगी. क्लियर है ना. अगर उस टाइम पे आपको 2 गेट ओपन कर दिए जाए तो हिंड्रेंस कम होगा, मतलब एरिया बढ़ा दूंगा निकलने का तो रेजिस्टेंस बिकम्स लेस. तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन area of cross section. On increasing the area of cross section, resistance will decrease. On increasing area of cross section, भाई इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर निकल सकते हैं ना. जब ज़्यादा एरिया मिलेगा तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, इतना एरिया मिल रहा है, अगर मैं बढ़ा दूंगा तो ज़्यादा एरिया मिला निकलने के लिए, हिंड्रेंस कम होगी, ज़्यादा टकराएंगे आपस में या एटम से. ओके. मीन्स R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A. अब देखिए इसमें ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या होगा. इट इज 1 अपॉन A, नॉट A, इट इज R. इट विल बी A. R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A. इज क्लियर. प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A.
तो अब मैं नंबर 2, इज इट क्लियर? अगर मैं ए और आर में ग्राफ प्लॉट करूं, हियर इज आर, तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, नॉट स्ट्रेट लाइन, इट विल बी कर्व. हियर इज आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a. याद रखना ये ए में है और ये 1/a में है. नाउ थर्ड पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर. जैसे कॉपर का है कम रेजिस्टेंस होगा, सिल्वर का है तो और भी कम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर. इज इट क्लियर? ओके. इसमें तो कोई फॉर्मूला है नहीं, इसमें तो है ना फॉर्मूला नंबर 2 और नंबर 3. ऑन कंबाइनिंग 2 and 3, ऑन कंबाइनिंग 1 and 2, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A. ये शो कर रहा है अगर L को इंक्रीज करूंगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन A को इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. नाउ थिंक अबाउट इट. थर्ड पॉइंट का कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें. थर्ड पॉइंट डिपेंड्स ऑन मटेरियल. तो यहां लेते हैं R इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट रो L/A. रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज, रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ओके, known as resistivity or specific resistance. It depends on material of conductor. केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन. देखते हैं अभी क्या होगा. इट मे चेंज स्लाइटली विद टेम्परेचर. उसका जब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, इट मे चेंज स्लाइटली, कम विद टेम्परेचर. तो ये हम जब लेंगे जब टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पर और रेजिस्टिविटी पर देखेंगे. इट मींस रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. अब ये नया वर्ड आ गया, तो सबसे पहले मुझे इसे डिफाइन करना होगा. व्हाट इज रेजिस्टिविटी, व्हाट इज दिस वन. तो व्हाट इज रो? RA/L. यूनिट ऑफ रो विल बी R का ओम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर. ये कैंसिल, दैट इज ओम इंटू मीटर. इट्स द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, SI यूनिट. इट्स SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. Is it clear? Now the definition of rho. देखिए बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं डेफिनेशन की. डेफिनेशन आपको लर्न करनी ही नहीं है. व्हाट इज रो? RA/L. तो देखिए मैं कैसे कर सकता हूं. इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड इट्स लेंथ. बिल्कुल सही है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है. इज द फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड देखिए, इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, देन व्हाट इज R इज इक्वल टू रो इंटू R इंटू A. इट्स द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर व्हेन इट्स लेंथ इज 1 मीटर. ये भी करेक्ट है, नो डाउट. अब देखिए और करता हूं आगे. इफ A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड L इज इक्वल टू 1 मीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? तीनों में से कोई गलत नहीं है किसी भी मेथड से. फिर से बता रहा हूं मैं ऐसा कर सकता हूं. फर्स्ट डेफिनेशन, इट इज द रेशियो, रो इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन टू इट्स लेंथ. सेकंड मेथड ये भी हो सकता है, L को 1 मान लूं मैं, तो रो इक्वल टू RA. तो द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर विल बी इक्वल टू रो. क्लियर? थर्ड पॉइंट देखिए, A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर. आपको लर्न करना ही नहीं है, मैं बता रहा हूं क्यों. आप कौन सी डेफिनेशन लिखेंगे आप? तो लिख सकता हूं द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर. ये हमने सपोज किया 1 मीटर
and area of cross section 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ भी 1 मीटर हो, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो आर जो होगा वही रो होगा। 1 मीटर स्क्वायर विल बी न्यूमेरिकली मीन्स ओनली वैल्यू, वैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक थोड़ी हो सकती है, न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज इट क्लियर? ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा फर्स्ट सेकंड क्यों रॉन्ग नहीं थे। फॉर एग्जांपल 2/4 इक्वल टू 1/2, बोथ आर करेक्ट, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, बट व्हाट द बेस्ट मेथड टू राइट इट? दिस क्वांटिटी मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये रॉन्ग नहीं है, ये भी करेक्ट है, इस फॉर्म में लिखना चाहिए इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इज दिस वन, तो वी कैन राइट इट। नाउ वन मोर डेफिनेशन ऑफ रो, देखिए one more important definition. Our condition is R must be, L must be 1 meter and A must be 1 meter square. तो मैं ऐसा ये वाला लेता हूं, एक क्यूब, इसकी लेंथ भी किसी मटेरियल का है, सॉलिड, ये लेंथ 1 मीटर, क्लियर है ना, और ये हाइट भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, करंट यहां से एंटर करता है इधर निकलता है, तो इट विल बी एरिया क्रॉस सेक्शन, ए विल बी 1 मीटर स्क्वायर, इट विल बी लेंथ एल इज टू 1 मीटर, दोनों कंडीशन क्लियर हो गई ना। इट मीन्स देखिए ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है अब ए 1 मीटर स्क्वायर हो, ये इतना हो, अब मैं केवल इतना लिख सकता हूं, तो द रेजिस्टेंस, अदर डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन ऑफ रो, द रेजिस्टेंस of a cube of side 1 मीटर, साइड 1 मीटर लूंगा तो लेंथ भी 1 मीटर होगी, एरिया क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टिविटी of the material of Q। दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिखिए, ओके, मुझे लगता है इट इज द बेस्ट डेफिनेशन। आपने लिखा था 1 मीटर, लेंथ 1 हो, ये 1 हो, देन यू कैन इजीली फाइंड दैट R इज इक्वल टू रो R A R L, that is R into 1 square divided by 1 means 1 into 1, that is only R, तो रो मस्ट बी इक्वल टू R, वही कंडीशन अप्लाई हो रही है वहां पे। तो इट द डेफिनेशन ऑफ न्यू क्वांटिटी जो रो की थी। चलिए आगे देखिए, वन क्वेश्चन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर of length 1 meter and area of cross section 10 centimeter square, 10 centimeter square. The resistance of a wire of length 1 meter is 1 ohm. Find its resistivity. तो देखिए नंबर 1 सॉल्यूशन देखिए क्या क्या गिवन है, R इज 1 ओम, L इज 1 मीटर। अब यहां प्रॉब्लम हो सकती है, व्हाट इज ए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट नॉट SI, यू हैव टू कन्वर्ट, मिस्टेक जनरली यही होती है, कुछ क्वांटिटी SI में दिया, कुछ CGS में दिया, तो सॉल्व करने से पहले देख लीजिए ऑल द क्वांटिटीज मस्ट बी इन SI, तो कन्वर्ट करूंगा तो 1 सेंटीमीटर को इंटू 10 टू दी पावर, सेंटीमीटर स्क्वायर को करना है, दैट इज 10 टू दी पावर -3 मीटर स्क्वायर। और यू नो वेरी वेल रो इज RA बाई L, तो R इज 1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1, दैट इज हाउ मच, ओम इंटू, इट द आंसर। इज इट क्लियर?
मुझे नहीं लगता ये टफ है। आगे देखिए क्वेश्चन 2, इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर becomes double and area of cross section becomes half, find new resistivity तो देखिए जरा, what is new resistivity? Rho is equals to R dash A dash divided by L, RA by L, L dash new लेंथ हो गया, R dash रेजिस्टेंस हो गया, पता नहीं मुझे क्या है। सबसे पहले देखिए न्यू एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन A dash is equals to A by 2. Is it clear? Now new length L dash is equals to double 2 times L. तो what is R? R के बारे में सोचिए क्या होगा? What is R? अगर मैं एरिया हाफ करूंगा, कम किया, तो रेजिस्टेंस बिकम्स, तो न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स R डैश कितना हो जाएगा? 2 टाइम R। देख लीजिए, ड्यू टू एरिया क्रॉस सेक्शन ये हाफ किया था तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस हाफ किया था रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, जितना एरिया कम करूंगा, याद होगा, बिकॉज R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया कम कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर? अब यहां भी देखिए, बिकॉज R इज प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ को डबल किया तो R डैश बिकम्स 2 टाइम R। अब देखिए 2 टाइम इससे हुआ, 2 टाइम इससे हुआ, 4 टाइम हो गया, तो व्हाट इज न्यू R डैश? 4 टाइम R। इज इट क्लियर और नॉट? अब सोच के देखिए, रो डैश 4 टाइम R इंटू A डैश, A डैश हो गया हाउ मच? A by 2, इट इज 2L। अब देखिए दिस कैंसिल, RA by L सेम, रो डैश इज इक्वल्स टू रो, नो चेंज। याद होगा आपको मैंने लिखा था कि रो डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल, डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन पर डिपेंड नहीं करता। फॉर्मूले से तो दिख रहा है RA by L, R को डबल कर दूं ये डबल हो जाएगा, ये डबल कर दूं ये दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। इट डिपेंड्स ओनली, क्योंकि अगर A को चेंज करूंगा तो R ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, L को चेंज करूंगा तो भी चेंज हो जाएगा, देयर विल बी नो इफेक्ट। इट मीन्स सेम आ रहा, वही आ रहा जो पहले था। इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो डैश? 10 टू दी पावर माइनस, पहले फाइंड कर चुका हूं, ओम इंटू मीटर। इट मस्ट बी क्लियर। मैंने लिखा था इट मे चेंज विद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो हम देख ही नहीं रहे हैं, केवल क्या देख रहे हैं? लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, तो देयर विल बी नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिए जरा, इट द वायर, सॉलिड वायर, ओके, लेंथ इज, इट इज चलो 5 मीटर, इट इज 2 मीटर, इट इज 3 मीटर, ओके। रेजिस्टिविटी, करंट यहां से एंटर करता है, I इधर निकलता है, ओके। इज इट क्लियर? फाइंड इफ रेजिस्टिविटी, या रेजिस्टिविटी फाइंड करना चाहूं, रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहूं, कुछ भी निकल सकता हूं। रेजिस्टिविटी ऑफ द क्यूबॉइड is 10 raised to the power minus 3 ohm into meter. Is clear? Ohm into meter. Find its resistance
Number one, when current enters from first part A, और दूसरे में यहां से निकालूंगा, करंट यहां से एंटर करता है. When current enters from end A, और लीव कहां कर रही है दिख रहा है मुझे, फिगर पर दिया हुआ है. B, current enters through surface X, ये वाला B. तो देखिए फर्स्ट पार्ट ए, जब करंट यहां से एंटर कर रहा है तो इट विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इट विल बी लेंथ, तो लेंथ होगा 5 मीटर. इज इट क्लियर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इसका एरिया और इसका मालूम है इसका सेम थिंग, 3 इंटू 2 दैट इज हाउ मच, 6 मीटर स्क्वायर. तो व्हाट इज रो, सॉरी आर, रो एल अपॉन ए. तो 10 raised to the power minus 3 it is given ohm into meter. L is 5 divided by 6, that is 5 by 6 into 10 raised to the power minus 3 ohm. क्लियर? चलिए बी पार्ट देखिए. करंट अब यहां से एंटर कर रहा है, इस एंड से एंटर कर रहा है, इस वाले से, तो एरिया इसका या इसका होगा, तो एरिया होगा इसका एरिया या इसका एरिया, दैट इज 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 दैट इज 10 मीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर? अब लेंथ क्या होगा, लेंथ होगी ये वाली, एल विल बी इक्वल टू 3 मीटर. तो फाइंड आर, आर विल इक्वल टू रो एल अपॉन ए. रो इज मेटल सेम, 10 माइनस 3, लेंथ इज 3 मीटर डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 4 ओम. याद रखिए जिस सरफेस से करंट एंटर कर रही है, लीव कर रही है, उसका एरिया होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और सरफेस के बीच का डिस्टेंस है दैट विल बी एल. तो वी कैन इजीली फाइंड दिस वन. एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. टेम्परेचर का हम लास्ट में लेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ. सपोज दिस इज अ वायर, ये वायर है मेरा, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है ए, इसमें करंट फ्लो हो रहा है. ओके, इसका लेंथ है कितना, एल. मैंने इसको कनेक्ट किया था किससे, बैटरी से. पोटेंशियल डिफरेंस इज V. तो मैंने आपको ये भी बताया था ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. इज इट क्लियर? नाउ जैसे ही स्विच ऑन करूंगा, स्विच ऑन, करंट विल फ्लो. तो व्हाट विल बी द करंट, मैं कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे. चलिए मैं यहां खड़ा हो गया, सपोज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज V. सपोज the speed means drift of electron is v मान लिया मैंने. तो यहां से v डिस्टेंस आगे तक, ये डिस्टेंस v स्मॉल से लिख लेता हूं, v डिस्टेंस आगे वाला इलेक्ट्रॉन जो यहां होगा, यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे 1 सेकंड में यहां पहुंच जाएंगे. इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा इसका क्या होगा, आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, वो यहां पहुंच जाएंगे. आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो यहां पहुंच जाएंगे. मींस इन 1 सेकंड द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम दे विल क्रॉस दिस एरिया. इन 1 second all the electrons in this area, in this volume will cross this cross section area. तो number of electrons, okay, crossing any cross section area of the conductor
इन 1 सेकंड, याद रखना t इक्वल टू 1 सेकंड ले रहा हूं मैं, तो इस वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर क्रॉस कर जाएंगे इसमें, तो वॉल्यूम निकाल सकता हूं मैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज ए, लेंथ मुझे मालूम है दैट इज v, तो व्हाट इज द वॉल्यूम, a इंटू इट द वॉल्यूम। Number of free electrons per unit volume, they are fixed, depends on material. If n is number of free electrons per unit volume is n, they are fixed, depends on conductor, they depends on कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर है, सिल्वर है तो सबसे ज्यादा होंगे। दे विल नेवर चेंज, हीट से भी टेम्परेचर से भी चेंज नहीं होंगे, ये मटेरियल से ही चेंज हो सकते हैं। तो इट द वॉल्यूम ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज दिस वन। और वी नो वेरी वेल द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ई, सो चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड through the conductor, अब देखिए चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड ऑल्सो नोन एज करंट, तो I विल बी इक्वल टू ए वी एन इंटू ई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, V is the speed, drift speed of the electron, A is the area of cross section, N is number of free electrons per unit volume, or each charge on electron. Now think about the motion of the electron, about the motion of the electron. देखिए इलेक्ट्रॉन था, ये कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, चलिए इनिशियल वेलोसिटी u, अब यहां मैंने क्या लगाया इस पर, पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव, क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर इधर की ओर फोर्स लगेगा, याद होगा फील्ड किधर की तरफ था, दैट इज E, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा ऐसे, जब फोर्स लगेगा तो वो एक्सीलरेट होगा, क्लियर है ना। तो देखिए एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बैटरी ने प्रोड्यूस किया था, E कितना होगा, A इक्वल टू फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फोर्स होगा, आप जानते हैं व्हाट इज E, F बाई क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट इज F, Q इंटू E, Q मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज E इंटू E डिवाइडेड बाई इट द एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज ड्रिफ्ट बाई दिस। तो ये ड्रिफ्ट होगा इधर की तरफ, ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इधर ड्रिफ्ट हो जाएगा, ये ड्रिफ्ट ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द एक्सीलरेशन। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी मैंने यू माना है, देखिए आफ्टर टाइम t, अब क्या होगा देखो थोड़ा सा इसे सोच के देखिए ना, यहां से यहां तक रैंडमली इट विल बैंड, सपोज कि इधर चल गया, तो यहां से कॉलिजन हुआ था, एक कॉलिजन यहां हुआ, इसके भी जो टाइम लग रहा है सपोज t1, सपोज t1, इफ टाइम टेकन between two collisions, collision means due to atoms and ions, is a T1 या T, it's T only, then what is, then drift velocity after time T, तो V मान लो उसको, V इज टू स्मॉल v इज टू u प्लस at, और मुझे मालूम है व्हाट इज a, e y m इंटू टी, इट्स द एक्सीलरेशन। ये तो केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, सबका मुझे निकालना पड़ेगा, या फिर एवरेज ले लूँगा, ऑन टेकिंग एवरेज, एवरेज, तो एवरेज को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए v एवरेज
इज टू यू एवरेज प्लस ई एंड एम कॉन्स्टेंट, दैट इज टी एवरेज. अब देखिए क्या है यहाँ पे वी एवरेज. हियर यू एवरेज इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ रैंडम मोशन. याद है आपको क्या था रैंडम मोशन में? दैट्स जीरो. तो ये तो मेरा जीरो हो गया. इनिशियली फोर्स अप्लाई नहीं किया तो इनिशियल वेलोसिटी ये थी. हर इलेक्ट्रॉन के लिए लूंगा तो u1 u2 u3 एवरेज निकालूंगा, दैट विल बी जीरो बिकॉज ड्यू टू रैंडम मोशन देयर विल बी नो करंट इन द कंडक्टर. आप देखिए आप t एट द एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स, मतलब जहां से मुड़ता है एक कॉलिजन, यहां से मुड़ा तो फर्स्ट यहां आगे मुड़ेगा तो यहां से मान लीजिए इधर मुड़ जाता है. ये इसके टाइम का इट मे बी डिफरेंट पर हमने तो एवरेज लिया है. इट इज ऑल्सो नोन एज टू रिलैक्सेशन टाइम मीन्स इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक रिलैक्स था, कोलाइड केवल यहां हुआ. ये जो टाइम लगता था एवरेज, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज टी. डिपेंड्स ऑल्सो ऑन टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फास्ट मूव करेंगे. तो वी कैन राइट एंड वी वार इट इज ड्रिफ्ट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वी कैन राइट इट vd, इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो अब मैं अगर यहां लिखना चाहूं तो क्या आएगा देखिए जरा. यहां होगा vd इज इक्वल टू EEYM इंटू टो. टो इज रिलैक्सेशन टाइम. अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एक्शन याद है, बिकॉज ऑफ I इज इक्वल टू ANE एंड V. V इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज vd. तो vd की वैल्यू पुट कर दूं यहां पर, तो व्हाट इज vd? तो I विल बी इक्वल टू ANE, इट इज vd, EEYM इंटू टो. व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और E का दो यूनिट बताए थे मैंने आपको, एक था न्यूटन पर कूलम, एक था वोल्ट पर मीटर. तो वोल्ट मीन्स व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द बैटरी, इट इज V. और व्हाट इज द लेंथ, दैट इज L. तो वी कैन राइट I विल बी इक्वल टू ANE स्क्वायर और E के प्लेस में VYML इंटू टो इज पोटेंशियल डिफरेंस. याद रखना इसको. तो मैं V की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं यहां से. व्हाट इज V? ML डिवाइडेड बाई ANE स्क्वायर इंटू टो इंटू I. अब थिंक अबाउट दिस फॉर्मूला, इसके बारे में सोचिए जरा. व्हाट इज V? ML डिवाइडेड बाई ANE स्क्वायर इंटू टो इंटू I. V इज पोटेंशियल डिफरेंस. तो अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूं, इफ ML डिवाइड बाई ANE स्क्वायर इंटू टो इज R रेजिस्टेंस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V इज, इट इज Ohm's law. It is Ohm's law. Is it clear? Now important is this one. Think about this R. Think about this, because what is R? ML divided by ANE square and tau. अब इसको सोच के देखिए. लेंथ L is length of the conductor, M mass of electron, constant E is
charge on electron is clear. Area of cross section A is clear, ये also constant. It means देखिए जरा फिर R is proportional to L, इस पर डिपेंड करेगा. R is proportional to 1/A, यही तो किया था हमने. अब देखिए N के बारे में सोचिए. N डिपेंड्स ऑन मटेरियल. सिल्वर के लिए N की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी N की वैल्यू. जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होता जाएगा, तो रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा इसका सिल्वर के लिए. तो N की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, गुड कंडक्टर होगा वो. इज इट क्लियर? और मतलब N पे भी डिपेंड करता है. तो R डिपेंड्स ऑन N और वी कैन से मटेरियल. इसके लिए रेसिस्टिविटी लिखी थी. अब देखिए टो पे भी तो डिपेंड करता है, बट टो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर. कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दूं घटा दूं, तो टेम्परेचर का डिपेंडेंस हम बाद में लेंगे. तो किस किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इंक्रीज करूंगा आर इंक्रीज होगा, ए पर ए इंक्रीज करूंगा तो डिक्रीज होगा. अगर मेटेरियल चेंज करूंगा एन चेंज होगा, रेजिस्टेंस विल चेंज. अगर टेम्परेचर चेंज करूंगा तो टो चेंज होगा, बट एम एंड ई विल नॉट चेंज. इज इट क्लियर? ओके, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको लर्न करना ये वाला. एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर एंड टो. ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. It was the derivation of Ohm's law and dependence of resistance. Is it clear? Okay. Now on next one we will take dependence. What is resistance and how resistance depends on temperature for conductor, insulator and semiconductors. Okay.